Hello everyone, I am Sonali with my team members Manraj and Ankita. We'll showcase our project Run Machine made under the guidance of our mentor Dr. Sarabjit Singh. So, introduction to Run Machine. It is a basic prototype of the centric idea of a powerful and cloud service for user with limited resources. It provides user a complete PC environment in which user can perform all the daily work along with using the powerful softwares which fail to run on normal PCs. Features including in this project are Directory Explorer like direct.h and various header files including IOStream, mmsystems.h, base on functions and shell execute function to gain control over Windows, and buffer removers and inline functions are used, dynamic memory allocation and pointers are used, functions and file handling are the features. Now it includes features from object-oriented programming as classes, object and dynamic binding. We are suggesting to provide users an online cloud platform which will get the inputs from the user and will perform all computation on the backend mainframe and server computers with the help of today's reliant databases. We can provide user this data security also. We'll provide the app stores to users so that he or she can install and uninstall any application on their cloud environment, but it will not consume memory because we are having a database which will be having the application record referred by the user. The purpose of the project is to demonstrate the basic prototype with our normal PC's computation. Our project includes the emulator framework made by our team effort, and we created some basic games and applications by ourselves to demonstrate the various features of our idea. Now, Ankita will continue further. Now we have presented our code in form of flowchart that describe all functionalities of our project. Running project has split into many small modules, and important modules used in the project are welcome, login and sign up, try again and forget password, reset password and timer, install and uninstall in application manager, and the last one is applications and game. First of all, welcome module will open having welcome message and provide two options, login and sign up. If sign up is chosen, then writing operation will be performed and verification of existing user will be done. If login is chosen, then credential will be taken and checked. If they are present else, then the user will be guided to forget or try again. Then our applications and game module will be open. It contains several applications that we have added in our project, that is Tic-Tac-Toe, My Music, Virtual Assistant, Number System Converter, Snake Game, and the last one is Horoscope. This module contains back, select, and move options, and all applications are accessed from here only. We have also added a unique feature in our project, that is install and uninstall. This is a part of application manager with the working of all features will be described by Manraj during runtime of software used. To design this project, we have used VS Code and Base C++ and some standard header files. For this project, we have linked WinMM library in Linker. Next topic is results and conclusion. The result of our team effort is that we accomplished the project discussed in our talk and solved the real world program, which we figure out using the existing programming knowledge and concept known with the guidance from Honorable Teacher Dr. Sarabjit Singh, who encouraged us to solve the real world programming problems. There are some of the references that help us to build our project. For example, Geeks for Geeks. Now Manraj will run the code. वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन के पास हमारे दो ऑप्शन हैं, न्यू साइन अप और लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो सबसे पहले मैं शो करूंगा कि हम यूनिकनेस कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैंने साइन अप का ऑप्शन सिलेक्ट करा, मैंने इसमें एक एग्जिस्टिंग मेल अकाउंट डाल दिया जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे डेटा में। तो उसके बाद पासवर्ड एंटर कर दिया और उसके बाद कॉन्टैक्ट। वो एज ये मेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमारे सिस्टम ने हमें चेक करके बता दिया कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और मैंने अभी एक न्यू मेल एड्रेस बना दिया, hello@gmail 1 2 3 फोन नंबर। तो हमारे पास ये अगली स्क्रीन आएगी। अगली स्क्रीन में हमारे पास ऑप्शंस है कि हम यूजर को इनिशियली कौन सी एप्लीकेशंस, सारी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करेंगे, तो यूजर कौन सी सिलेक्ट करना चाहता है। बाद में यूजर अनइंस्टॉल और इंस्टॉल का ऑप्शन यूज करके कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, बट फॉर द इनिशियल कंडीशन यूजर कौन से एप्लीकेशन चाहता है। फॉर एग्जांपल ये सभी यहाँ पे अनसिलेक्टेड है, मैं सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ अपने डिवाइस में। ये मेरी नई आईडी है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड गलत एंटर, तो पासवर्ड गलत एंटर होने के केस में हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, जैसे कि फॉरवर्ड पासवर्ड और ट्राई अगेन। तो फॉर टाइम बीइंग अगर मैं फॉरवर्ड पासवर्ड को सिलेक्ट करूँ तो हमारे पास यहाँ पे मेल आएगी, तो हम मेल एड्रेस डालेंगे जिसपे हम मेल चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई अकाउंट फाउंड नहीं हो क्योंकि मैंने दूसरा मेल एड्रेस डाला है, इसने इस मेल एड्रेस को सर्च किया और ये मेल एड्रेस इसको नहीं मिला। आपको दिखाऊंगा कि हम मेल कैसे सेंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना जैसे पहले हमारा फॉरवर्ड पासवर्ड में हमने
रजिस्टर नहीं था वो मेल, तो अब करेंगे सही एंटर, राज सिंह 167@gmail, हमारा मेल सेंड हो गया। तो यहाँ पे हम मेल आएगी, रिफ्रेश करेंगे और ये हमें मेल आ गई। तो हम मेल को open करेंगे, यहाँ पे हमें मेल सेंड होंगे, आई मान क्रेडेंशियल्स डाल देंगे, राज 16, हम एंटर कर, एंटर करने के बाद भी हमारे पास दो चॉइसेस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने गलत पासवर्ड एंटर करा है तो दोबारा उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्रीवियस स्क्रीन पर, और अगर सही एंटर करा है तो हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे कि हम अपना पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं और विदाउट चेंजिंग पासवर्ड कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर हम सिलेक्ट करेंगे सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे हमने सही क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे, मनराज सिंह, यहाँ पे हमारा साइन इन होगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्क्रीन मिलेगी और ये हमारा बेसिक यूआई है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हमारी एप्लीकेशंस हैं। बैक के साथ हम अपने एप्लीकेशन से बैक चले जाएंगे और उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन के साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे, और मूव के साथ हम पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है इसको सारी एप्लीकेशंस को ट्रैवर्स कराएंगे। और ये हमारा जो पॉइंटर है ये सेल्फ अडेप्टिंग है, इसको अगर कोई भी नई एप्लीकेशन ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उस पर पॉइंट हो जाएगा, और अगर अनइंस्टॉल करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को तो वो भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, ये हमारी एप्लीकेशन हैं जो इंस्टॉल्ड है हमारे पास, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने हैंगमैन को इंस्टॉल कर, तो इसको उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और इंस्टॉल करो किसी भी एप्लीकेशन को, फॉर एग्जाम्पल थर्ड इंस्टॉल कर लूँ, इसको भी इंस्टॉल, तो हमारे पास ये पॉइंटर अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और ऑल्सो अगर हम दोबारा इंस्टॉल को प्रेस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपने सारी एप्लीकेशन पहले ही इंस्टॉल कर ली हैं तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, तो फीडबैक, और यहाँ पे हम फीडबैक सबमिट करें। और सिमिलरली अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल का फीचर यूज़ करेंगे, बट अगर हम सारी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देंगे तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि यू हैव ऑलरेडी अनइंस्टॉल्ड ऑल द एप्लीकेशंस, हमें कुछ एप्लीकेशंस पहले इंस्टॉल कर, और उसके बाद हमारा बैक का फीचर है, अगर हम बी प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये हमारा सारा डेटा इरेज करके हमें दोबारा से यहाँ पे नई स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करते हैं। और हम वन बाय वन अपनी सारी एप्लीकेशंस को विजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्टार्ट है टिक टैक टो, यहाँ पे हमने साउंड्स ऐड करे हैं तो हम एंटर के साथ बिगिन करेंगे, तो ये हमारी टिक टैक टो है। इसको माई म्यूजिक एप्लीकेशन एक डायरेक्टरी को ट्रैवर्स करिए और उसमें जितने भी सॉन्ग्स हैं उन सबको फेच करिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे सॉन्ग्स हैं और मैं वन के साथ किसी भी सॉन्ग को प्ले कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल से मैंने प्ले कर दिया सॉन्ग 45, तो ये प्ले हो जाएगा यहाँ से, और ज़ीरो के साथ हम इस म्यूज़िक प्लेयर को बंद कर सकते हैं। और सिमिलरली हमारी अगली एप्लीकेशन है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट इज़ एन अमेजिंग एप्लीकेशन। Welcome, I am your virtual assistant. How can I help you? तो ये हमारी वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे कि हम तो माई पिक्स भी ओपन कर सकते हैं, ओपन माई पिक्स, और ये हमारी पिक्चर जो इसी के साथ हम वन के साथ किसी भी पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड पिक्चर को, ये हमारी पिक्चर ओपन होगी और हम मेन फंक्शन देखेंगे। मेन फंक्शन में हमारे एप्लीकेशन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस को इनहेरिट करा है, और करंटली हम लेवल 1 पे हैं, और इसी के साथ हमने मैक्सिमम मैप्स को 7 सेट करा है, और वाइल लूप हमारे वेलकम फंक्शन को डिस्प्ले करवाएगा, और इसी में हमने अगर इनिशियल कंडीशन है काउंट इज इक्वल टू 0 तो हम सारे वेरिएबल्स को सेट करेंगे। सेटर हमारा सेट करेगा कितने मैक्सिमम वेरिएबल्स हमें चाहिए, जैसे कि हमारी एप्लीकेशंस, और उसके बाद सेट है जो उनको 0 सेट कर देगा, और वाइल लूप हमारा चलता रहेगा, और अगर कोई भी सिलेक्शन होगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेवल 2 पे आ जाएंगे। लेवल 2 में हमारा सबसे पहले मेल वेरीफाइड है या नहीं वेरीफाई होगा, और उसके बाद हम इसके वाइल लूप में आ जाएंगे। वाइल लूप में हमारे पास मैक्सिमम वेरिएबल्स जो बिलियंस होंगे उनको सेट करेंगे, और उसी के साथ डन को दोबारा 0 सेट करेंगे। अगर हमने एग्जीक्यूशन में देखा था कि अगर यूज़र बैक प्रेस करता है तो हमें सारा डेटा रीसेट करना है, तो डेटा रीसेट इस इफ़ क्लॉज के साथ होगा। इस इफ़ में हम सारे डेटा को रीसेट कर देंगे, और इसी के साथ अगर हमारी कोई भी सिलेक्शन बनती है तो हम इस लूप ब्रेक कर देंगे। और ओपन इट जो हमारा फंक्शन है ये हमारे सारे डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, और सिस्टम CLS तो हमें पता है कि स्क्रीन क्लियर करेगा। और इस ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और हम सारी मेमोरी को रिस्पॉन्सिबली फ्री करेंगे।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सारी मेमोरी को फ्री करा है जो हमने डायनामिकली एलोकेट करी थी, और अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं होगी तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। अपने कोड के कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रेजेंटेशन में कहा था कि हम 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करवाएंगे, तो ये उसका एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूजर के पास सिर्फ 7th एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो हम उसे सिर्फ 7th एप्लीकेशन लोड करेंगे और बाकी सारी एप्लीकेशन उसके लिए यूजलेस है, तो उन्हें हमने 0 सेट कर दिया। और ये हमारे यूजर्स का डेटा है, और ये हमने लास्ट में की को पास करा है। फॉर एग्जांपल जो यूजर 1 है उसकी की 1 होगी, जो यूजर 2 होगा उसकी की 2 होगी। इन कीज का बेसिकली पर्पस क्या है, जब हम यहाँ से उसके एप्लीकेशंस को रीड करेंगे तो हमें बार बार एप्लीकेशंस को चेक नहीं करना पड़ेगा, हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कम करने के लिए डायरेक्टली की पास करेंगे और उस पर जंप कर देंगे। और ये हमने हेडर फाइल्स में कोड डिस्ट्रीब्यूट करा है। फॉर एग्जाम्पल ये हेडर हैंगमैन का कोड है, और ये टिक टैक टो का कोड है, और ये हमारी म्यूजिक dir.h में डायरेक्टरी एक्सप्लोरर है जो म्यूजिक प्लेयर में यूज होगा। इसी के साथ हमारा सिमिलर कोड है फोटोज dir.h का, और लास्ट में हमारे पास ai.h का जो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का। और यहाँ पे हमारी मेन क्लास है एप्लीकेशंस, और इसमें हमने स्नेक गेम, एंटरिंग द डिवाइस और जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनको इनहेरिट कर रहा है। वर्चुअल कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं एम्बिग्विटी को रिजॉल्व, इसमें कुछ हमारे पब्लिक हैं। और ये हमारा मैक्सिमम बुलियंस का फंक्शन है जिसमें हमने एक पॉइंटर बनाया था एल, जो कि ये हमारे एप्लीकेशंस के लाइन नंबर कंसीडर करेगा, और उसमें हम जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप्स हमारे होंगे उसको पास करेंगे तो हम उतने बुलियंस क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद उन सबको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। हम एक लूप चला रहे हैं, लूप चलेगी हमारी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे होंगे, और ऐप हमारे में ऑलरेडी फाइल से रीड करके हम वेरिएबल्स को सेट कर लेंगे। तो हमें पॉइंटर सिर्फ वहाँ डिस्प्ले करवाना है जहाँ हमारे पास ऐप इज इक्वल टू 1 होगा, तो हमें सिर्फ उसी लाइन पे ऐप इज इक्वल टू 1 करना है जिसमें हमें डिस्प्ले करवाना है पॉइंटर को। तो हम यहाँ पे अगर ऐप के इज इक्वल टू 1 होगा तो हम उस लाइन में 1 सेट कर देंगे, और जे जो हमारा है हम जे के साथ ट्रैक रखेंगे कि हम करंटली किस पॉइंटर पे हैं, तो हमने जे को के सेट कर दिया और उसके बाद इस लूप को ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमारा है मूव पॉइंटर। मूव पॉइंटर में हम हमारी आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं एम, एस और एग्जिट, तो एग्जीक्यूशन में दिखा चुके हैं ये सारा। तो अगर एग्जिट हुआ तो एग्जिट में हम यूजर से फाइनल कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद एग्जिट कर देंगे, एग्जिट में हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्लास हमारी एप्लीकेशन।